Hello students, today we will be talking about insurance awareness. This lecture doesn't mean that I am going to tell you the questions which are 100% sure that these are coming to examinations. This is not an objective of this session. The objective of this session is to make you aware of what is the type of questions and what may be the theme of the questions that may be asked under insurance awareness, because LIC AAO LIC AAO is the you will find that it is the best exam for you. Okay, it is the best exam for you, and not only for you, it is better than any public sector bank in which you are willing to go. It will give you work life balance very nice. There will, and the most important thing that there is always shortage of in LIC, pay scale is also good. You will be earning at start salary around 93,000, which is also a good amount. Better posting is also very good in LIC. Then this may be your dream job. So n- do not let it go as usual, and do not take it casually, very casually, because you should make, अगर आप किसी चीज को अगर 100% देख के नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता फिर आप फॉर्म क्यों भर रहे हो. दैट द मनी यू आर इन्वेस्टिंग इन द फॉर्म, that your your expenses, all other expenses included in this preparation of the exam, will go in vain once you didn't get your selection. Okay, ठीक है फिर. As you know, you most of things you know about me, as I am a senior manager working in a public sector bank, and my qualifications I have already told you in the videos that I have a number of qualifications, which doesn't show that I am much qualified that I can teach you, which shows that I have some knowledge base that I can give you. It may provide a path towards your success. Okay, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इंश्योरेंस अवेयरनेस में आ सकते हैं. ठीक है, बेटर यू टेक अ पेन एंड कॉपी एंड मेक सम नोट्स एंड डायरेक्शंस. और जब तक LIC के एग्जाम हो रहे हैं, इसमें एक सेक्शन आता है फाइनेंशियल मार्केट का. फाइनेंशियल मार्केट का टेलीग्राम ग्रुप में वैसे तो मार्केट पे, मनी मार्केट पे सब शेयर कर दिया है. फाइनेंशियल मार्केट भी सेम ही है. इस पे अलग से वीडियो मैं डालता रहूंगा. बेटर आई विल बी शेयरिंग योर वीडियोस, माय वीडियोस, especially when there is a holiday in bank, because I have already told that I do not have enough time to do these things on working days. And further, on holidays I have on some social commitments also. um, I have friends and relatives also. Not only friends and family is also important, as I cannot devote all the time for only in teaching. That's why I am not charging a single penny for this session. Even a number of sessions I have seen that what the garbage are being sold over YouTube and other coaching institutions online, and they are running the life of the candidates, providing just materials which are irrelevant and never going to come in examination. They are just collecting the materials and hire the content developers without the content is not useful, just they are making pages and selling you. Better you be aware of these things and plan accordingly. Okay, it has been much of talk, and we will be moving towards our topic now. And directly we will go to the questions. किस तरह के क्वेश्चन, आई ऑलरेडी सेड दैट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस. जो टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, व्हाट यू नीड टू स्टडी, इसके बारे में अलग से वीडियो में जल्दी ही डाल दूंगा. देखिए, ये क्वेश्चन आया है, पहले भी इंश्योरेंस एग्जाम में आ चुका है, शायद ADO में. व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान. ठीक है, इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान. इंडोमेंट
LIC की पॉलिसी जानते हो, उसमें एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा इंडोमेंट प्लान वो होते हैं जिस प्लान को आप जब तक उसकी साइकिल है आप उसको पेमेंट करते हो और लास्ट में आपको इंडोमेंट मतलब कुछ मिलना, इंडोमेंट मतलब मिलना, क्या मिलता है, उसका कुछ रिटर्न मिलता है। ठीक है, रिटर्न मान लो आपका 10,000 मंथली का प्लान था, 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर्स का, और बाद में बोला आपको 8 लाख 10 लाख 12 लाख कुछ मिलेगा, तो ये इसका इंडोमेंट है और इसी को मनी बैक प्लान भी कहते हैं। ये सब जो मनी ब्लैक प्लान है वो इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में आते हैं। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ रिस्क वाया रिस्क पूलिंग। अच्छा, जो लोग रिस्क, अच्छा, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट वाला एग्जाम दिए होंगे IABF का या रिस्क मैनेजमेंट का कोई कोर्स किए होंगे, तो पहला ही डिफिनीशन जो रिस्क मिटिगेशन में आता है कि बहुत सारी चीजों को पूल करके हम जो इंश्योरेंस लेते हैं, पूल करना, सिक्योरिटाइजेशन भी एक तरह से रिस्क पूलिंग ही है, रिस्क दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो पूलिंग के थ्रू उसको ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये रिस्क को जो मिटिगेट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिस्क, रिस्क दूसरे को दे देना। जैसे लाइफ का रिस्क है, चलो ये बंदा है, ठीक है, इसको लाइफ का रिस्क है, मतलब ये मर सकता है। ठीक है, तो अच्छा, मरने पर क्या होगा, लॉस होगा, चलो ये मान लो मनी का लॉस होगा, अर्नर है उसका लॉस होगा, लेकिन किसी भी चीज की वैल्यू, ये अपनी एक वैल्यू क्रिएट करता है और बोलता है कि मुझे मरता हूं या कुछ होता है तो मुझे 20-25 लाख रुपए में मेरा घर का काम चल जाएगा और ये चीजें हो सकती हैं, मतलब वो मैनेज हो सकता है। ठीक है, लॉस तो मैनेज नहीं हुआ, लेकिन जो रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है, बहुत सारे डैमेजेस हैं, इस स्पेशली फाइनेंशियल डैमेजेस, वो इसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली कि मैं अगर मरूंगा तो मुझे 50 लाख रिटर्न में मिलेगा। तो ये क्या है, ये है इंश्योरेंस, समझ में आया? तो ये जो इसके लाइफ का रिस्क था, इसने अब क्या है, अगर रिस्क अगर हुआ, इसके लाइफ को रिस्क हुआ तो अल्टीमेट टेंशन किसको आएगा, किसको प्रॉब्लम है, ये जीवन बीमा LIC कंपनी को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हालांकि LIC दूसरी चीज है, इंश्योरेंस कंपनीज आर डिफरेंट, लेकिन वी विल यूज द टर्म LIC फॉर लाइफ इंश्योरेंस एज जनरल केस इन दिस सेशन। ओके, तो ये प्रॉब्लम अभी इसका रिस्क इसको हो गया कि अगर इसको रिस्क आता है लाइफ का तो प्रॉब्लम LIC को होगी, वो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ रिस्क बाय रिस्क पूलिंग। अच्छा, अगर रिस्क पूलिंग वर्ड नहीं भी यूज है तब भी इसका आंसर इंश्योरेंस ही होगा, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ रिस्क होता है वो इंश्योरेंस ही है, चाहे थ्रेट मतलब थेफ्ट का हो, चाहे ऑपरेशनल फेलियर का हो, किसी भी तरह का, तो उसको इंश्योरेंस ही कहते हैं। इंश्योरेंस मीन्स, इंश्योरेंस इज ए गारंटी टू कवर द लॉस। ठीक है, अच्छा देखो, एक वर्ड होता है इंश्योरेंस, ANSUR, इंश्योरेंस, ठीक है, इट इज नॉट ए गारंटी, बट इंश्योरेंस इज ए गारंटी। ठीक है, मतलब वो गारंटीड है कि उसमें आपको मिलेगा, एसोसिएटेड है। जैसे मैं आपको इंश्योरेंस दे रहा हूं कि अगर ये चीज हो गया, नहीं हुआ तो मैं आपको 20 लाख दूंगा, तो अगर वो नहीं हुआ तो आप 20 लाख उसको दोगे, 20 लैक्स। अब मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ या इंश्योरेंस दे रहा हूँ कि ये नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा या 20 लाख, तो वो आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि वो दैट इज नॉट इंश्योरेंस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द पॉलिसी विच कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू होम लोन बारोवर्स। ठीक है, होम लोन वाला बंदा अगर मरता है तो उसके साथ क्या टेंशन है, होम लोन वाला बंदा अगर मरता है तो प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कमा के इसका EMI भर रहा है और वो मर गया तो इसकी EMI टूट जाएगी। ठीक है, इसके लिए अभी बैंक भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लाइफ इंश्योरेंस लेने लगे हैं, लेकिन वो मोर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस होता है। मोर्टगेज रिडम्पशन इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे मान लो आपका 50 लाख का लोन है, 1 मिनट इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, आपका 50 लाख का लोन है, कितने का लोन है, 50 लाख का, नॉट क्लियर, 1 मिनट, दैट इज 50 लाख का लोन है आपका। ठीक, और कुछ दिनों तक आपने भरा, अभी वो 47 लाख बचा हुआ है। ठीक, और किसी की डेथ हो गई जिस बंदे ने लिया था, अब ये 47 लाख का मोर्टगेज का रिडम्पशन हो जाएगा, मतलब मोर्टगेज के लिए जितना पैसा बचा हुआ है वो बैंक को पेमेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं मोर्टगेज रिडम्पशन
स्कीम। अगर आप लोग लेना अगर हाउसिंग लोन तो ये ले लेना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं होता है इसका। हमने अपने ब्रांच में एज अ ब्रांच मैनेजर व्हेन आई वाज वर्किंग ऑलमोस्ट इन एवरी लोन, मैं फोर्सिबली नहीं दिया किसी को, बस बताया कि ये चीजें अगर होंगी तो आप रिडम्पशन, और ये चीज आप घर पे बता के रखो। ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस ले लिया और घर को बताया ही नहीं है, कोई क्लेम नहीं करेगा, इंश्योरेंस कंपनी घर पे आके पैसा नहीं देने वाली ना, इट विल गो इन वेन। तो जब भी आप इंश्योरेंस लो तो अपने घर पे जरूर बताओ किस चीज का इंश्योरेंस है, क्या है, सबको बता दो। ठीक है। अब सरप्लस क्या होता है, दैट इज वेरी सिंपल। सरप्लस किसी चीज में इनकमिंग ज्यादा है अगर आउटगोइंग कम है तो इनफ्लो हो गया, आउटफ्लो ज्यादा है इनकमिंग कम है तो ये आउटफ्लो हो गया। इन द सेम वे जब हम बैंकिंग या इंश्योरेंस टर्म की बात करते हैं तो अगर सरप्लस होता है, असेट्स अगर ज्यादा हो किसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उसको बोलते हैं दैट कंपनी सरप्लस। अच्छा ये बताओ, सरप्लस इज गुड और बैड? यस, सरप्लस इज गुड। बाय द सेम टाइम surplus is good, by the same time surplus in high volume is also not good because you need to say, चलो सर अब इसी को समझाते हैं। सरप्लस मतलब आपके एसेट्स कैसे, लोन है आपका एसेट है, लोन है, ठीक है, लोन आपका एसेट है, और कासा जो डिपॉजिट है सेविंग का वो आपका लाइबिलिटी है। अगर कासा कम हो गया तो आप लोन देने के लिए बाहर से पैसे लोगे जो कि आपके लिए डेंजर है। सरप्लस ज्यादा हो गया इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने लोन ज्यादा दे दिया है, लोन ज्यादा दे दिया है, सीडी रेशियो आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास कासा नहीं है, यू डोंट हैव कासा। रिसेंटली अभी न्यूज में देखा होगा बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स और रिलाइंग मोर ऑन कॉस्टली डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग। तो अभी जो प्रॉफिट ये सरकारी बैंकों में दिख रहा है ना, ये एक बबल की तरह है, आने वाले दिनों में ये फिर फटेगा। अभी जो बॉन्ड्स इशू करके ये लोग पैसे ला रहे हैं टीयर टू कैपिटल और इन सब के लिए, दूसरे इन्वेस्टर से ला करके ये कॉस्टली बारोइंग ले रहे हैं और लोन दे रहे हैं। जब भी लोन अभी इनकम जनरेट कर रहा है देन इट इज ओके, वंस इट गोज एनपीए द सेम रिलेटेड डिपॉजिट्स, कॉस्टली डिपॉजिट्स विल आल्सो बी पेएबल टू द बैंक एंड दैट विल बी crunch of the liquidity in the bank. By the same time, if it is going everything right, then right. Okay. ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं भी पढ़े होते तो भी करके आ सकते थे। एन इंडिविजुअल लाइक्स पास्ट सेविंग द मोस्ट ड्यू, मतलब जो आदमी अपनी बचत करता है उसकी जरूरत उसे सबसे कम होती है, रिटायरमेंट के बाद होती है सबसे ज्यादा। वही पूछ रहा है, विच स्टेज ऑफ लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत होती है? पोस्ट रिटायरमेंट। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वेयर वाज द यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी, सबसे पहले यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? यूएसए में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनटेंजिबल, चलो इनटेंजिबल मतलब जिसको हम टच ना कर सकें, और टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सके, तो इसको टच कर सकते हो, इसको भी टच कर सकते हो, इसको इंश्योरेंस को टच नहीं कर सकते आप, क्यों? अब ये नहीं कहना कि इंश्योरेंस पॉलिसी कॉपी आई, दैट इज डिफरेंट, दैट इज द कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज नॉट द इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेंस कोई भी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी, वो आप टेंजिबल है। या कोई भी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप चाहे कोई किसी का बुआ है किसी की फूफा, दैट इज इंटेंजिबल, दैट इज एज अ पर्सन ही इज टेंजिबल, बट रिलेशनशिप, इंश्योरेंस रिलेशनशिप इज देयर, दैट इज intangible. Okay, which of the following is not characteristic of variable life insurance? ठीक है, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी ऑनर सेलेक्ट वेयर, देखो वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस तो होता ही है, वो एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है, उसको डिसाइड करना होता है, वो उसमें खुद बता सकता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, डेथ करने पर अगर डेथ होती है तो कम से कम कितना हमें मिलेगा चाहे जब हो, ठीक है, या टाइम के साथ डिग्रेड तो नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, प्रीमियम इसका फिक्स रहता है, तो फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट, अच्छा फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट अभी तक किसी में आया ही नहीं है, आपका प्रीमियम हमेशा फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। इन MWP एक्ट केसेस मैच्योरिटी क्लेम चेक्स हमेशा ट्रस्टी को पेमेंट होता है, तो इसके लिए तो
MWP एक्ट ये पढ़ लेना, ये बता देंगे नेक्स्ट सीजन में बता देंगे। ये राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है, इन एन इकोनॉमी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। न्यूज में पढ़ रहे हो, ये सबको पता होगा कि इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप रिलेट करिए। 10 to 5 questions, 5 to 10 questions I will be sharing on every holiday। तो इस तरह से आपके अराउंड 100 क्वेश्चंस तो इंश्योरेंस के प्रिपेयर हो जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का वीडियो आई विल मेक, ये पीडीएफ आई विल शेयर, ये पीडीएफ जो है इसका, इस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बट डू नॉट शेयर इन एनी अदर ग्रुप। मैं देख रहा हूँ मेरा बहुत सारा आरबीआई का सर्वर कॉपी पेस्ट करके दूसरे ग्रुप में भी शेयर हो रहा है समटाइम्स। तो ठीक है ये, बट दिस इज नॉट गुड। डू स्प्रेड, फॉरवर्ड करो बट नॉट इन द नेम ऑफ, फॉरवर्ड इट इन द नेम ऑफ एग्जाम जोन 24/7। ओके, ओके, फिर I will be closing the session now and hope you will be do best in the upcoming exam। और एएओ के लिए मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये आप अपना ड्रीम जॉब मान के चलो। बैंकिंग और सेक्टर से भी बेस्ट जॉब है ये। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में इससे बेस्ट एंट्री लेवल पे जॉब नहीं मिल सकती, आपको बताया। या तो फिर आप आरबीआई ग्रेड बी में जाओ। आरबीआई असिस्टेंट भी बेकार जॉब है, किसी काम का नहीं है। देन बेटर यू ज्वाइन पीओ, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट करोगे, फिर प्रमोशन लोगे, ग्रेड ई बनोगे, फिर ग्रेड बी बनोगे, फिर कुछ और आगे जाओगे। इट टेक्स मच टाइम, ठीक है। तो अगर पीओ और इसमें देखोगे तो पीओ पीओ में ग्रोथ असिस्टेंट से बहुत ज्यादा है, बट सर दर्द बहुत है पीओ में। एज ए पीओ व्हेन आई ज्वाइंड अराउंड 12 years बैक, तो बहुत ही रियली, नॉट द 12 years, इट हैज बीन अराउंड 10 years एंड सम मंथ। तो इस तरह से आप अपने आप को समझाओ कि आपको कहाँ जाना है, वेयर यू वांट टू गो, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कौन से मटेरियल पढ़ने हैं। एक्सेसिव मटेरियल मत पढ़िए, कंटेंट क्रिएटर्स के ऐसे ही मत पढ़िए, किसी काम का नहीं है। इवन अगर एक टॉपिक ही पढ़ोगे आप बहुत थ्रूली, तो इट विल टेक 4-5 months, इवन स्टिल समथिंग विल बी इनकम्प्लीट। तो आप वो चीजें पढ़ो जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जस्ट क्वालिफाई द एग्जाम एंड गो। व्हाई यू आर डूइंग पीएचडी इन एग्जामिनेशन, ठीक, ओके। और a small request to all of you that must share this channel and must like and subscribe, okay. I will be closing the session. Thank you, have a nice